प्रकार से एग्रीकल्चर को प्रभावित किया है? तो इसका आंसर है a vast blanket of pollution stretching across South Asia is cutting down the sunlight by 10% over India, damaging agriculture and modifying rainfall patterns. तो इसका मेन रीजन है कि 10% तक जो है सनलाइट को उसने प्रभावित किया है हेज ने, एंड दैट इज व्हाई इट इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर. नंबर 2, व्हाट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हेज? तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग pollution leads to the cause of haze, formation of haze. Number 3, what were the levels of premature deaths estimated in 7 major cities during the 1990s due to respiratory diseases? यानी कि respiratory disease से कितने लोग प्रभावित हुए थे, कितने लोगों की डेथ हुई थी 1990s में? So this data is 24,000 and in next premature fatalities 37,000 in mid 1990s. ये आपके पैसेज में दिया गया है. Number 4, what did Professor V. Ramanathan say about the effect of haze on current drought in most part of India? तो इनके विचार थे. He said that if the drought persists for about 4 to 5 years, then we should start suspecting that it might be because of haze. अगर ऐसा और 4 से 5 साल तक हो गया ड्रॉट यानी कि सूखा, तो ये बिकॉज ऑफ हेज. विच कंट्रीज आर मोस्ट अफेक्टेड बाय हेज एंड व्हाई? कौन से देश ज्यादा प्रभावित हैं? तो इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया, ये है सबसे ज्यादा अफेक्टेड है हेज से. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज देयर ओवरऑल कंसर्न फॉर एशिया ओवर द नेक्स्ट 30 years? So it is because of Asian visibility rise up to 5 billion people. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 5 बिलियन पीपल जो है लगभग यहाँ पर बढ़ गए. और लास्ट इसमें क्वेश्चन है कि प्रीमेच्योर का क्या अर्थ है? सो प्रीमेच्योर मीन्स हैपनिंग बिफोर द नॉर्मल टाइम और एक्सपेक्टेड टाइम, यानी हम जो उम्मीद करते हैं उससे पहले अगर कुछ होता है दैट इज कॉल्ड प्रीमेच्योर. So students, we are moving to section B. Section B is your writing section, and in this we have given a letter to the editor. आपको लिखना है, इसका टॉपिक है regarding the necessity of promoting English speaking for better communication with tourists. आपके कंट्री में जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं उनके साथ इंग्लिश की स्किल हमारी अच्छी नहीं हुई, तो यहाँ हमारे कंट्री में जितने भी हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, यहाँ की कंडीशंस है, यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस है उनके बारे में हम उन्हें अच्छे से नहीं बता पाएंगे. तो जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट है हमारे कंट्री में दे वांट टू सेटिस्फाइड, तो इसलिए आपको ये लेटर लिखना है. लेटर का हेड, देन वी राइट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर एंड देन बॉडी. सो एज अ रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ इंडिया आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ promotion of English speaking. So English speaking, why it is necessary that you have to show in this letter. आपको इसे बताना है कि what problem they are facing, we are facing. If English will be improved, our communication will be improved. Why? Because English is an international language. Next question, you have to write a notice about asking insightful or to giving necessary detail to claim it back. यानी कि आपके जो क्लास के कुछ स्टूडेंट हैं उसने अपनी कुछ चीज को लॉस्ट कर दिया है, दैट इज ए पर्स, और वो पर्स आपको उसे लौटाना है. सो इन दिस वे you will write in a rectangular box. First you will write notice, then you will write the name of your school, and then you will start. This is to inform all the students of school that yesterday a purse was found in the school library. यानी कि कल हमारे स्कूल लाइब्रेरी में एक पर्स मिला है. The student whoever has lost it, जिस विद्यार्थी ने इसे अपना खो दिया है, after giving all the necessary details you write about this. So आपको लिखना है कि उस पर्स में क्या क्या चीजें हैं जिससे कि वो स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर पाए, पहचान पाए कि ये पर्स उसका है, and he will come and take it back from you. So next question is
writing section, you have to write about the problem of unemployment. So unemployment is so pretty in our country. It is the need of our to improve the skills in vocational fields so that our students can get so many opportunities in their life. So आप इसमें टॉपिक दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अनबियरेबल एम्प्लॉयमेंट। अनबियरेबल एम्प्लॉयमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा, जितना होना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा है, बिकॉज पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड बट इन आवर कंट्री पॉपुलेशन इज वेरी मच, बहुत ज़्यादा जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन होने के बाद हमारी सरकार भी फेल हो जा रही है बिकॉज ऑफ द सिस्टम। और मेन थिंग इज दैट आवर थॉट, हमारी सोच क्या है कि हम पढ़े, वी गेट एजुकेटेड एंड देन वी फाइंड ए जॉब, और हमें वो जॉब नहीं मिलती तो हम अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। बट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट वी हैव टू इम्प्रूव आवर थॉट कि हमें एक जॉब नहीं करनी है बल्कि कुछ न्यू स्टार्टअप्स करने हैं जिससे कि हम दूसरे लोगों को जॉब दे सकें। तो इस तरह के थॉट हमारे यंगस्टर्स में होगा, कुछ न्यू बिजनेस डेवलप करने, कुछ न्यू आइडियाज से आगे बढ़ने के, तो ये हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। तो इन दिस वे यू हैव टू प्रेजेंट द थिंग्स which you want to explain about the unbearable employment. Then you have question answers from your book, and that is your reader book. So first question is that the world's most dangerous animal is one zoo in Lusaka, which is situated in Zambia. Zambia के कंट्री में जो प्लेस है वहाँ पे एक जू है और वहाँ पर लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि हु इज द दैट मोस्ट डेंजरस एनिमल। सो दैट डेंजरस एनिमल इज द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर सो अनअवेयर ऑफ सेविंग आवर एनवायरनमेंट। हम लोग अपने पृथ्वी को, अपने प्लैनेट को ग्रीनर एंड क्लीनर होने से हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं। किस तरह से उसे ग्रीन रखना है, क्लीन रखना है, ताकि हमारा जो प्लैनेट है वो एलिंग प्लैनेट ना बने, यानी कि बीमार प्लैनेट ना बने, ताकि हम लोग जो है वहाँ पे आसानी से रह सके। तो ये ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स हमारे कारण ही आज पर्यावरण इस स्थिति में पहुँच गई है। इसलिए कहा जा रहा है कि वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इज ह्यूमन बीइंग। इंसान ही सबसे बड़ा डेंजरस यानी खतरनाक जानवर है इस प्लैनेट का। सेकेंड क्वेश्चन है कि हु इज मिस्टर प्रॉपर हैरिस। प्रॉपर हैरिस कौन है? तो आपके इस चैप्टर में दिया गया है कि ही इज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज और वो टैब्लो नाम के एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। व्हाई हैज द आर्टिकल हैज बीन सिल्क रोड। सिल्क रोड का जो नेम है क्यों दिया गया है? तो सिल्क रोड जो है एक काफी फेमस रोड है जो कि माउंट कैलाश तक आपको ले जाता है, माउंट मानसरोवर तक। और उसी यात्रा में इस स्टेशन में जो है सिल्क रोड में जो नैरेटर है वो इसी ट्रैवल पे जाते हैं जिसे हम लोग कोरा के नाम से जानते हैं। कोरा इज ए रिलीजियस जर्नी टू मानसरोवर। तो इस जर्नी के कारण और उस रास्ते पर बहुत पहले यूरोपियन जो है सिल्क का व्यापार किया करते थे और उसी सिल्क बिजनेस के चलते उस रोड का नाम पड़ गया सिल्क रोड और इस आर्टिकल का नाम सिल्क रोड पड़ गया। तो नेक्स्ट वी हैव कि फादर टू सन में जो फीलिंग को दिखाया गया है ये क्या पर्सनल प्रॉब्लम है या यूनिवर्सल प्रॉब्लम है? तो फादर टू सन में हम लोगों ने देखा है कि इट इज अ पर्सनल प्रॉब्लम इन दैट पोएम बट एक्चुअली इट इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं एट प्रेजेंट व्हाट वी आर फेसिंग दैट मेनी फादर एंड सन्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद ईच अदर। बहुत सारे पिता पुत्र संबंध ऐसे हैं जो एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और जनरेशन गैप हो जाता है, उनके बीच कम्युनिकेशन गैप भी होता है और इस तरह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज को आपको फादर टू सन पॉइंट में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में क्या है कि आप किस
traced in that poem childhood. नेक्स्ट है कि आइंस्टाइन जो कहते हैं कि आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, मुझे इन डेट्स को, हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं बहुत सारे डेट्स, ये वार कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, सेकंड कब हुआ, प्लासी की बैटल कब हुई, तो ये डेट्स रिमेम्बर करने में आइंस्टाइन जो है बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि वी मस्ट लर्न अबाउट द फैक्ट्स, साइंस, इनोवेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए जो हमारे लाइफ में कुछ बेनिफिट देगा। बट उन डेट्स को लर्न करने से ये एजुकेशन नहीं कहलाता। तो दैट इज द थॉट ऑफ आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज डॉक्टर एंड्रयूज? डॉक्टर एंड्रयूज कौन थे? तो ही वाज ए न्यूली अपॉइंटेड डॉक्टर। वो अभी बहुत दिन के बाद जस्ट प्रैक्टिस की उन्होंने, अभी डॉक्टर बने हैं। एंड ही सक्सेसफुली conducted the delivery of a child in that chapter। आपने देखा है कि उस लेसन में उन्होंने एक सक्सेसफुल डिलीवरी दिलाई जिसमें से काफ़ी स्ट्रगल किया और उन्होंने वो डेड बेबी जो कि डेड आया था और फिर उसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, अपने अनुभव से, अपनी प्रैक्टिस से उसे फाइनली वो हेल्दी बना सके और वो बेबी जो है आफ्टर अ मिरेकल ही स्टार्टेड क्राइंग and then everybody got happy। And last we have section D। section D में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जो कि 5 नंबर में रहता है और इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में लेना है। 2 क्वेश्चन में से आपको any one करना है। So how was Dr. Andrew successful in reviving the child? किस प्रकार वो बेबी का बर्थ कराने में सक्सेसफुल होते हैं। तो इसमें आपको पूरी स्टोरी का एक समरी आपको देना होगा कि व्हाट हैपेंड इन स्टार्टेड, किस तरह की टेक्निक्स को यूज किया गया। डॉक्टर जब देखते हैं कि बेबी इज नॉट टेकिंग ब्रीथ, वो सांस नहीं ले रहे थे, तो वो क्या करते हैं, वो 2 टेक्निक यूज करते हैं। एक तो कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, यानी कि बेबी को वो एक बार कोल्ड वाटर में डालते हैं देन हॉट वाटर में, और इस प्रकार से करते करते हाफ एन आवर के बाद वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। दूसरा वो करते हैं कि टॉवल से बच्चे को रब करते हैं, क्योंकि उनकी जो मिडवाइफ थी वो बता देती कि दिस बेबी इज डेड, बट डॉक्टर डिड नॉट लूज हार्ट, ही ट्राइड हिज बेस्ट एंड वेरी बेस्ट टू गिव हिज 100% एंड फाइनली ही गॉट सक्सेस। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज फिजिकल कंडीशन ऑफ ऑथर इन दार्जिलिंग? जो राइटर है सिल्क रोड पे अपनी यात्रा कर रहे थे, उनका क्या कंडीशन था? तो उन्होंने स्टोरी में पढ़ा है कि वो राइटर जो थे निक मिडलटन, वो एक माउंट कैलाश की जर्नी कर रहे थे और उनकी काफ़ी डिफिकल्टीज के बाद उन्होंने वहाँ पर जर्नी अपनी की और उन्होंने सरवाइव किया। बट व्हेन ही गॉट वेरी हायर, जब वो काफ़ी हाई पहुँच गए थे, देन ही गॉट प्रॉब्लम ऑफ cough and cold, fever, then he consulted to doctor and doctor gave him medicines, and after taking 1 or 2 night rest he felt better. So those difficulties you have to mention in this question, and what other problems he faced during his journey you have to mention that. So students, in this way you can write the answers of your set 1 and you will prepare for your exam. Thank you. All the best. Hello students. Now we are here to solve your set 2 given by JCERT, and you have got different publications to solve the answers. But main thing is to understand it. आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे मार्केट में जिसमें कि आंसर्स आपको दिए गए हैं, लेकिन आप उन्हें समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, देन यू कैन नॉट राइट इट प्रॉपरली। सो लेट्स अंडरस्टैंड मॉडल सेट 2। फर्स्ट वन इज द पैसेज एज यूजुअल। तो पैसेज को हम लोग रीड आउट करेंगे, देन वी हैव टू आंसर। देयर वाज ए ग्रेट किंग शिबिराना हु हैड इमेंस पावर, देन इवन गॉड इन हेवन वेयर अमेज्ड। एक किंग थे जिनका नाम है शिबिराना और वो काफी पावरफुल थे। They feared that Sibi might take away their kingdoms. They devised a plan to test his sense of justice. तभी उनके
जो जस्टिस करने का जो तरीका है, न्याय करने का, उसको जज करने के लिए वो सही है या नहीं, उसके लिए प्लानिंग की गई। They decided to reach Sibi's kingdom in disguise. वो लोग भेष बदल के सिबी राणा के साम्राज्य के अंदर पहुंच जाते हैं। One day Sibi Rana was sitting on his throne. His courtroom was surrounded by majestic gardens. एक दिन जो है सिबी राणा अपने साम्राज्य के जो दरबार में बैठे हुए थे। There came a scared dove flying to him and it was followed by a fierce looking eagle. तभी एक डरा हुआ सा बर्ड आता है, डव। डव इज ए बर्ड, और उसके पीछे कौन है? फियर्स लुकिंग ईगल, बहुत ही डरावना दिखने वाला ईगल बर्ड। द किंग gave shelter to the dove and saved her. तो उस राजा ने उस डव बर्ड को आश्रय दिया और उसे बचा लिया। The eagle argued that the king has taken away his food. तब उस ईगल ने वो किंग से आर्गुमेंट करता है, यानी कि बहस करता है कि आपने मेरा फूड क्यों ले लिया, मेरा भोजन क्यों ले लिया। It would starve, मैं तो भूख से मर जाऊंगा। The king assured the eagle that he would give equal quantity of other food. तब राजा उसे कहते हैं कि आपको उतना ही मात्रा में खाना मिल जाएगा। The eagle asked for King Sibi's flesh. तब वो ईगल डिमांड करता है कि मुझे आपका फ्लैश यानी कि आपका मांस चाहिए खाने के लिए। The Mani's king agreed with a smile, और राजा तैयार हो जाता है। ओके। A balance was bought in the court. It was soon found that with each addition of the king's flesh, the dove grew heavier. जैसे जैसे राजा का फ्लैश के ऊपर काम किया जा रहा था, वो जो डव बर्ड है वो दिन प्रतिदिन भारी होते जा रहा था। The equal balance was not arrived, but the king remained calm and unperturbed. उसके बॉडी से काटा जा रहा फ्लैश निकालने के लिए, फिर भी वो बिल्कुल शांत, एकदम काम है, कूल है। The gods in the guise of dove and eagle, और वो डव और ईगल कौन थे? वो भगवान थे जो वो भेष बदल के आए थे राजा को टेस्ट करने के लिए। The forms of eagle and the dove soon disappeared, और फिर से जब देख लेते हैं कि राजा के अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत धैर्य है, तब वो अपने वापस असली फॉर्म में आ जाते हैं। In their place stood Indra, the king of gods, and Agni. तो इंद्र भगवान भी आए थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? अग्निदेव, है ना? And the god of fire, smiling and blessing the king for his benevolence and greatness. उस राजा को काफी आशीर्वाद देते हैं क्योंकि वो बहुत ही महान निकले, है ना? So we have to answer, why were the gods in heaven afraid of the king Sibi? King Sibi Rana had immense power than the gods in heaven. तो क्यों सभी लोग इस राजा से डरे थे? क्योंकि ये काफी पावरफुल थे, काफी जाने माने थे। What made the eagle angry? ईगल गुस्सा क्यों हो गया? The eagle was angry because the king took away his food, the dove. क्योंकि उसका भोजन राजा ने ले लिया। What did the eagle demand? ईगल ने क्या मांगा? Sibi's flesh, यानी कि राजा का फ्लैश, मांस। फ्लैश को क्या बोलते हैं? मांस। Who were in the disguise of the eagle and the dove? Actually में वो ईगल और डव कौन थे? Gods, देवतागण थे, है ना? अलग अलग फॉर्म में। So next we have poem. Read out the poem. When I am dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant thou no roses at my head, nor shady cypress tree. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो आप लोग कुछ भी इस तरह का मत करें, जैसे कि कुछ प्लांट लगाना, फ्लावर चढ़ाना। Be the green grass above me with showers and dewdrops wet. And if thou wilt remember and if thou wilt forget. जो हमें चाहे भूल जाए या याद करे, मेरे ऊपर बस ग्रीन ग्रास, कुछ घास के टुकड़े रख देना। I shall not see the shadows, I shall not feel the rain. जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं इन चीजों को महसूस नहीं कर पाऊंगा, जो यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं। I shall not hear the nightingale. Nightingale एक बर्ड है, उसकी आवाज भी मैं सुन नहीं पाऊंगा।
Sing on as if in pain. अगर मैं दर्द में हूँ तभी भी कुछ नहीं बोल पाऊंगा. And dreaming though the twilight that doth not rise or set, happily I may remember and happily may forget. यानी कि जो चाहे खुशी से मुझे याद कर ले या मुझे भूल जाए, I never mind. तो इस पोएम से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. What does the poet tell her dearest not to do after her death? क्या नहीं करना है? Not to sing sad song. कोई भी उदासी भरा वाला गाना नहीं गाना है, और ना कोई प्लांट रोज करना है, ना सैली साइप्रस ट्री लगाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट टेल हर डियरेस्ट टू डू आफ्टर हर डेथ? आफ्टर डेथ क्या करना है? टू प्लांट ग्रीन ग्रास. कुछ घास के प्लांट्स को लगा देना है. व्हाट विल द पोएट नॉट एक्सपीरियंस आफ्टर हर डेथ? किन चीजों को वो अपनी मृत्यु के बाद नहीं कर पाएंगे? नाइटिंगेल की आवाज नहीं सुन पाएंगे, बारिश की आवाज नहीं सुन पाएंगे, और कोई भी प्रकार का शैडो का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे. तो इस तरह से आपका सेक्शन ए यहाँ पर फिनिश होता है. सेक्शन बी, ट्रैफिक कंडीशंस के बारे में आपको लिखना है रिपोर्ट राइटिंग, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन इनटॉलरेबल ट्रैफिक कंडीशंस क्यों होते हैं. बिकॉज वी डोंट फॉलो द रूल्स ऑन द रोड. हम लोग ट्रैफिक पे रूल्स फॉलो नहीं करते हैं. किस प्रकार की सिचुएशन फेस करते हैं? पीपल कुड नॉट रीच देयर ड्यूटीज एंड ऑफिसेज ऑन टाइम. अ पेशेंट गेट अफेक्टेड इन द एम्बुलेंस. वो काफी प्रकार से लोग जो है यहाँ पर सफर करते हैं. दीज थिंग्स यू हैव टू एक्सप्लेन in devastating traffic condition as your report writing. After that you have one composition, life without mobile. So how would you explain it in some own words? So you have to write that in our life water, air, clothes, shelter, everything is important. But now this technical age, आज के इस तकनीकी युग में हमारे लिए फोन इज एंड मोबाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क आउट इजीली, कंफर्टेबली. हम लोग किसी भी काम को कर पाते हैं मोबाइल के यूज करके. नेट बैंकिंग है, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन पेमेंट्स है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, स्टडी है, ऑनलाइन कोर्सेज है, बहुत सारी चीजें हैं. तो दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस कंपोजिशन. And next we have section C. Section C में आपको कुछ question answers हैं that you have to write down. For example, first is Papa ji. Why did Papa ji not help Mama ji with the pickle making? पापा जी जो थे वो मामा जी को क्यों हेल्प नहीं करते थे पिकल बनाने में? पिकल मीन्स अचार बनाने के बिजनेस में. तो because he thinks that his menial job is to be done by his wife. क्योंकि उन्हें लगता था कि इस तरह का काम सिर्फ महिलाओं को ही करना चाहिए. नेक्स्ट है व्हाट डिड द टेलीग्राम अनाउंस व्हिच सत्यजीत रिसीव्ड. आपके एक स्टोरी है इस रिलेशन में. सत्यजीत नाम के कैरेक्टर, उनको एक लेटर आता है. उस लेटर में क्या लिखा रहता है? तो ही गॉट द लेटर फ्रॉम अंकल श्रीनाथ. अंकल श्रीनाथ सत्यजीत जी को एक लेटर देते हैं और उसमें लिखा रहता है कि his fifth daughter बीना's wedding, कि उनकी 5वीं पुत्री बीना की शादी है on the 12th month and his 3 daughters had been married. उनकी ऑलरेडी 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी और 5th जिसका के नाम है अरुणा, उसकी शादी होने वाली थी. And he has invited, उन्होंने सत्यजीत को क्या किया था? इनवाइट किया था शादी में. And requested to shower his blessings कि आके उनकी बेटी को आशीर्वाद दे. तो इस टेलीग्राम में यही लिखा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द नरेटर ऑर्डर फॉर द लेडी इनिशियली. लंचन जो आपका लेशन है उसमें क्या ऑर्डर किया जाता है? रेस्टोरेंट में. तो वहां पर काफी एक्सपेंसिव चीजें, उस लेशन में वो महिला जो है काफी महंगी महंगी आइटम ऑर्डर करती है, खाने की चीजें. जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा है मटन चॉप एंड दिस सालमन फिश वगैरह वगैरह, बहुत सारा आइटम्स है वो ऑर्डर करती है. इतना ज्यादा ऑर्डर कर देती है महंगी आइटम्स की, उस समय राइटर को अपनी पूरी महीने की सैलरी देनी पड़ती है. किस लिए? लंच करने के लिए. और यही आपके लेसन लंचन में दिखाया गया है. नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इज टू मच विथ अस.
इससे आपका क्वेश्चन है कि why the poet is dissatisfied, क्योंकि he was that the humanity must get in touch with nature to progress spiritually। इंसानों को नेचर से कनेक्ट होना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है टू कंटिन्यू द स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता जो हमारी आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, उस पे हम लोग नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ह्यूमैनिटी को नेचर से इन टच में रहना, यानी प्रकृति को इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते हैं। What does the hawk do while sleeping? एक लेसन है आपका हॉक रूस्टिंग। हॉक रूस्टिंग में दिखाया गया है कि वो while sleeping क्या करता है। तो while sleeping the hawk turns his head around and tuck them into the fluffed up feathers of the back। वो अपने सर को, हेड को टर्न करता है और कुछ इस तरह की एक्टिविटी वो सोते वक्त करता रहता है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर दी कंसेप्ट्स दैट कुमुदनी लाखिया रिप्रेजेंट। कुमुदनी लाखिया जो है आपको क्या कंसेप्ट दिखा रही है इस लेशन में। तो इस लेशन में दिखाया गया है प्लाइट ऑफ ए मिडिल क्लास वुमेन। एक भारतीय महिला जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, मिडिल क्लास में, उसकी क्या स्थिति है उसको इस लेशन में दिखाया गया है कि कोई भी वुमेन है, महिला है, वो भी अपना कुछ स्टेटस, अपनी कुछ पहचान सोसाइटी में बनाना चाहती है। What was the common bond between tigers and sheep? आपके एक लेशन में टाइगर और शिप के बीच में कुछ रिलेशन दिखाया गया है। So he is free to play flute all day as well fed tigers and fed sheep drink from the same pond with a full stomach for a common bond। तो इसमें क्या होता है, इस लेसन में शिप एंड डॉग्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और अंत में उन लोगों के बीच में फाइट होती है। सॉल्यूशन कैसे होता है कि अंत में एक ही पॉन्ड का, पॉन्ड यानी कि तालाब, वहां का पानी दोनों लोग ड्रिंक करते हैं एंड देन दे जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग व्हिच हैपेंड इन द पास्ट। वो फिर भूल जाते हैं। तो अंत में आता है आपका सेक्शन डी, लास्ट सेक्शन है आपका। इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको एनी वन करना है। तो आपका जो दोनों क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है एक ही लेसन से, द ओल्ड मैन एंड द शी। तो ओल्ड मैन एंड द शी के बारे में आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इस लेसन के मेन कैरेक्टर जो है वो है सेंटियागो। सेंटियागो एक बहुत ही ओल्ड मैन है और एक बॉय है मेनोलिन। मेनोलिन नाम का जो बॉय है वो लगभग 5 to 6 इयर्स का लगभग बॉय है जो कि इनको फिशिंग में हेल्प करता है। फिशिंग यानी कि मछलियां पकड़ना, वो भी समुद्र में, बिकॉज इन द लेसन इट इज रिटन सी। सी में यानी कि समुद्र में जाके वो लोग फिशिंग करते हैं और एक बूढ़ा व्यक्ति है और एक छोटा सा बच्चा है मेनोलिन जो उनको हेल्प करता है। तो ये काफी अच्छी सी बॉन्डिंग है इन दोनों के बीच। एक पेरेंट्स की तरह वो रोल प्ले करते हैं जो ओल्ड मैन है। तो इनके साथ क्या होता है कि ये अपने आप को काफी अनलकी मान रहे थे, वेरी अनलकी। वाई कि बहुत दिनों से वो समुद्र में जा रहे और बिल्कुल भी वो फिशिंग नहीं कर पा रहे, एक भी मछली उनके हाथ नहीं आ रही थी। तो इस तरह से बहुत लोगों के बीच बात होने लगी और फाइनली क्या होता है कि एक दिन सेंटियागो जब विद फुल करेज, पूरे हिम्मत के साथ वो अकेले निकल जाते हैं समुद्र में एंड मेनोलिन वाज नॉट देयर टू हेल्प हिम। उस दिन मेनोलिन किसी कारण से उनके साथ फिशिंग करने नहीं जा पाया और सेंटियागो जो है वो 1 से लेके 84 डेज तक वहां पर फिशिंग के लिए ट्राई करते हैं। 84 डेज तक उनके हाथ एक भी फिश नहीं लगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा व्यक्ति है और भरे समुद्र में वो एकदम अलोन है, अकेले है एंड मेनोलिन इज नॉट देयर। तो हाउ he will be able to catch fish। तो फाइनली क्या होता है कि 85 डे में वो एक बहुत बड़ी मार्लिन फिश, उस फिश का नाम है मार्लिन। तो मार्लिन फिश जो है वो पकड़ते हैं और वो काफी ज्यादा उसका वेट होता है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा वेट होता है कि जब लोगों को पता चलता है कि इतना बड़ा फिश कैच हुआ है तो पूरे वहां पे समुद्र के किनारे जो सोसाइटी थी, जो विलेज था, गांव था, वहां पे पूरा न्यूज बन जाता है कि यार इतना बड़ा फिश पकड़ा। लेकिन उसके पीछे सेंटियागो कितना संघर्ष करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, ये किसी ने
नहीं देखा, वो उनकी कई बार जान जाते जाते बच गई। उनके पास उनके शार्क ने भी अटैक किया था उनको, क्योंकि फिश बहुत डेंजर फिश होते हैं सी में। तो वो सारी चीजों को फेस करते हुए अंत में वो सक्सेसफुल होते हैं। तो इस तरह से आपको जो स्टोरी है उसकी एक छोटी सी समरी यहाँ पर डाल देनी है। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व योर शेड 2 स्टूडेंट्स। If you have any doubt, you can write me down. Thank you.